सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर इंग्लिश में टेंसेस। ठीक है, टेंसेस क्या होता है? टेंसेस शो द टाइम एंड एक्शन ऑफ द इवेंट। द टाइम एंड एक्शन ऑफ द इवेंट। ठीक है, टेंसेस तीन टाइप्स के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, बट each tense is divided into four aspects like simple, continuous या जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हम ये चार एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। पास्ट के करेंगे और फ्यूचर के करेंगे। टोटल 3 into 4 12 टेंसेज होते हैं, इंक्लूडिंग देयर सब पार्ट्स। तो ए, सिंपल प्रेजेंट। Simple present. Structure is subject plus verb की first form plus SEIS plus object, या ना भी हो तो चलेगा. This is the structure. Okay. This includes uses of universal truths, habits, routines, etc. जैसे she reads daily. The sun rises in the east. Honesty is the best policy. And now we talk about present continuous. Present continuous. The structure is subject plus verb is am plus verb की ing form. हाँ, बस फिलहाल तक है. इसके यूजेस होते हैं. यूजेस actions happening now, near या फ्यूचर प्लान. एग्जाम्पल के लिए ही इज studying now. I am meeting her tomorrow. Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट. स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट नहीं, पहले हैज हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यूज्ड इन रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस. यूज्ड इन
actions. जैसे they have finished the project. Project. She has written 3 poems today. She has written 3 poems today. Now we'll talk about the last one. Present. Yes. Present perfect form. The structure is subject plus has, have, been will keep ing form. Uses actions started in the past. But are still in continuation. Still in continuation. This example. I have been working since morning. He has been living here for 3 years now. Next, past tense. Past tense. तो past tense के अलग अलग टाइप हैं. पहला है सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट plus verb is second form. This is the only tense where verb second form is used. Let's say करना है तो करो वरना मत करो. Used in completed actions in the past. Used in completed actions in the past. जैसे क्या? She wrote a letter. They played cricket yesterday. ठीक है. नेक्स्ट हो जाता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस. जो कॉन्टिन्यूस वाले होते हैं दिस माइट बी दी मोस्ट इजीएस्ट वन. ठीक है. सब्जेक्ट प्लस was verb plus verb की ing form. Very easy. Used in ongoing past actions या interrupted ones.
जैसे आई वॉज रीडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई was reading when she called. They were dancing all night. No? Past perfect. Subject. And let's go to third part. Uses. Actions completed. Before another past action. Examples are: she had left before I arrived. She hmm, they had finished the test by 5 p.m. Past perfect continuous. Structure: subject plus had been plus verbs first form uses. Duration before past point. किसी समय के पास में बीते हुए समय के जस्ट पहले का टाइम. ठीक है, तो क्या he had been waiting for 2 hours. I had been night. Future tense. Future. Simple future. Subject is will, shall, verb first form. अभी मुझे अब याद दिलाना कि मुझे आपको पढ़ाना है क्या, यूजेस ऑफ सिंस स्लैश फॉर विल स्लैश शैल. ठीक है.
हैज़ हैव में क्या होता है कि हैज़ सिंगुलर के साथ लगता है, हैज़ सिंगुलर के साथ लगता है, हैव प्लूरल के साथ लगता है। दिस इज वेरी क्या होता है, हैज़ जो है सिंगुलर के साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है। सेम चीज़ होती है किसके साथ, एम इज आर और was were but had, इन दोनों के साथ लग सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यूज फॉर, यूजर्स होते हैं इसके, प्रोमिसेस, predictions, decision at a moment. For example, I will call you tomorrow. It will rain tonight. It will rain tonight. Future continuous. Subject. Will be और आगे जिसमें बी यूज होता है कॉन्टिन्यूस में याद रखना। जैसे क्या, she will be studying at 11 p.m. I will be crying after what happened today. Now, future perfect. Future perfect. Subject plus be, हाँ उसमें शाल have नहीं लगता है, उसमें भी नहीं लगता है। ठीक है, will have plus वर्ब की थर्ड फॉर्म। यूजर्स होते हैं इसके कहाँ कहाँ, completed action before a future time. Completed action before a future time. आप ये देख लीजिए, अगर आपने ना देखा हो ये देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए। Completed actions before a future time. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
he will have submitted the form Monday. I will left by 6 p.m. Future perfect continuous. Last. इसमें विल हैव बीन लगेगा, ठीक है। इसमें शैल से पहले वाले में आएगा, विल हैव बीन इसमें लगेगा, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है कि ड्यूरेशन अप टू a point in the future. For example, by next year I will have been working अब हम बात करेंगे क्या कॉमन मार्कर्स की। कॉमन मार्कर्स जो यूज होते हैं, जैसे प्रेजेंट के सिंपल में क्या यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज होता है, परफेक्ट में क्या यूज होता है, पास्ट के सिंपल में क्या यूज होता है, हाँ परफेक्ट में क्या यूज होता है, फ्यूचर के सिंपल में क्या यूज होता है, और परफेक्ट में क्या use होता है। इसमें जनरली ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, एवरी यूज होगा। कॉन्टिन्यूअस में नाउ, राइट नाउ, करेंटली यूज होगा। परफेक्ट में जस्ट, ऑलरेडी, येट, सिंस, फॉर। सिंपल में yesterday, in 2020। perfect में before, after, by the time।
fine before by the time जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो क्या करते हैं बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट को मिक्स कर देते हैं, दे मिक्स इट विथ पास्ट सिंपल, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो इतना आप नहीं करना, ठीक है। आप ये फॉर्म्स याद कर लेना, बट कभी कभी जैसे रीड यूज हो गया तो निकल जाती है। बट इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इन लोगों को डिफरेंट बनाती है कि इसमें हैव हैज दिस इज स्टार पॉइंट, ठीक है। दे यूज continuous when simple is needed और सिंस या फॉर नहीं लगाते हैं। और वर्ब फॉर्म्स में कंफ्यूजन होती है, जैसे कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, ठीक है। ठीक, अब मैं आपको लास्ट चीज़ जो बताना चाहूँगा वो है कि सिंस कहाँ कहाँ यूज होता है और फॉर कहाँ कहाँ यूज होता है। सिंस यूज होता है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जैसे सिंस मॉर्निंग, और इसमें फॉर 3 days, 3 days मॉर्निंग। आपको समझ में आ गया होगा क्या, ठीक है। और अब हम बात करेंगे विल शैल की, ठीक। विल शैल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पीछे बता देते इन केस यू हैव मिस्ड इट, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। विल शैल कर रहा है, तो विल के साथ क्या होता है, प्रॉब्लम है कि ये फ्यूचर एक्शंस में यूज होता ही है, ठीक है। शैल क्या होता है, दिस इज फॉर्मल, दिस इज फॉर्मल या प्रोमिसेस, आई शैल डू दिस, ये सब वो सब, ठीक है। ये जनरली ये ऐसे ही न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये जनरली ऑल पर्सन के साथ यूज होता है, ये आई के साथ और वी के साथ ही होता है मोस्टली, ठीक है। ये डेफिनेट एक्शन दिखाता है, ठीक है। जैसे आई विल कॉल यू लेटर, ठीक। ये जनरली प्रॉमिस ये दिखाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। बट बट
एक सेकंड रुकिएगा जी। तो एक्चुअली क्या होता है कि आई वी के साथ हमेशा, आई और वी के साथ हमेशा शैल लगेगा, ठीक है, जनरली, ठीक है। अदर्स के साथ विल लगेगा, ठीक है। किस किस चीज़ के लिए? पी ओ ई टी, प्रॉमिस, ओथ, एम्फेसाइजेशन या थ्रेट, आई विल किल यू, ठीक है। ये जनरल वाला है, ये जनरल केसेस है, ठीक। बट इस केस में, बट इस केस में आई और वी के साथ विल लगेगा और अदर्स के साथ शैल लगेगा, ठीक है। आई विल किल यू, ठीक, ये हो जाएगा। हाँ, थैंक यू।